Hi everyone, welcome back to our channel. So today we are going to start from question 10 of exercise 2.2. So let's begin. 10th question. The number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? So question given है कि the number of boys ਤੇ girls ਦੀ ਜਿਹੜੀ ratio ਹੈ ਉਹ 7:5 ਹੈ. So ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ let number of boys in class 7:5 गिवन है. सो 7 ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬॉयਜ਼ ਦੀ, तो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 7x ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਲੈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗਰਲਸ ਇਨ ਕਲਾਸ 5 ਰੇਸ਼ੋ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 5x ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬॉयਜ਼ ਇਜ਼ 8 ਮੋਰ ਦੈਨ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗਰਲਸ. ਕਿ ਜੋ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬॉयਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 8 ਮੋਰ ਹੈ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗਰਲਸ. ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 16 ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ 16 ਹੈ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ 8 ਹੈ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕਲਾਸ ਸਟਰੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਟਰੈਂਥ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ. ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਮੋਰ ਦੈਨ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗਰਲਸ, ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 8 ਮੋਰ ਹੈ ਹੀ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮੋਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ. ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬॉयਜ਼ ਤੇ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬॉयਜ਼ ਜੋ ਸੀ 7x ਸੀ, ਗਰਲਸ 5x ਸੀ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬॉयਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ 8 ਮੋਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮੋਰ ਕਰਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਸੀ. ਸੋ ਇੱਥੇ 5x ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਆ ਕੇ ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ 2x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 8. ਸੋ 2x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇੱਧਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ. ਸੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 4 ਆ ਗਈ. ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬॉयਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 7x. 7 into 4 is equals to 28, and number of girls ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 5x. ਸੋ 5 into 4 is equals to 20. ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ what is the total class strength. ਸੋ ਕਲਾਸ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਬॉयਜ਼ ਤੇ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਜਾਏਗੀ. ਸੌਰੀ, ਬॉयਜ਼ 28 ਸੀ, ਗਰਲਸ 20 ਸੀ. ਸੋ ਹੇਅਰ 48 is our answer. 11th question. Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of one of them? So basically इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि हमने एज फाइंड करनी है ये तीनों की, बाइचुंग की, बाइचुंग के फादर की, बाइचुंग के ग्रैंडफादर की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाइचुंग की जो एज है उसे x कंसीडर करेंगे. लेट द एज ऑफ बाइचुंग x ईयर्स, और उसके बाद उसके फादर की करेंगे. फादर की क्या कहा है कि 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचुंग, कि बाइचुंग से उसके फादर की एज 29 ईयर्स ओल्डर है, मतलब बड़ी है. तो हम उसमें क्या करेंगे, जो बाइचुंग की एज x कंसीडर की थी उसमें 29 हमने ऐड कर दिया, तो ये उसके फादर की एज आ गई. उसके बाद उसके ग्रैंडफादर की हमने कंसीडर करनी है. ग्रैंडफादर के बारे में क्या कहा है कि बाइचुंग्स फादर इज़ 26 ईयर्स यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर, कि उसके जो फादर हैं वो 26 ईयर्स यंगर हैं ग्रैंडफादर से, कि 26 ईयर्स छोटे हैं उसके ग्रैंडफादर से. या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसके ग्रैंडफादर जो हैं वो 26 ईयर्स बड़े हैं, तो उसके फादर की जो हमने एज कंसीडर की थी उसमें हम 26 ईयर्स
ऐड कर देते हैं तो उसके ग्रैंडफादर की एज बन गई हमारे पास। तो अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज़ 135 ईयर्स, हमें ये गिवन है कि, तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ देयर एजेस क्या है 135, तो हमने यहाँ पे उनकी सबकी एजेस जो हमने कंसीडर की थी उनको ऐड कर दिया, x प्लस 29 x प्लस 55, तीनों को ऐड करके 135 के इक्वल कर लिया। तो यहाँ पे हमें 3x से 1 2 3, तो ये 3x बन गया, प्लस 29 प्लस 55 इज़ 84 इज इक्वल्स टू 135। यहाँ पे 84 ऐड हो रहा है तो दूसरी साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो दूसरी साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 3x की वैल्यू आ गई 3x के इक्वल आ गया 51। सो अभी 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 17 ईयर्स। सो बाय चूंकि एज हमने x कंसीडर की थी, x की वैल्यू हमारे पास 17 ईयर्स आ गई, उसके फादर की क्या थी x प्लस 29, तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 17 प्लस 29 इज 46 ईयर्स, और उसके बाद उसके ग्रैंडफादर की हमने की थी x प्लस 55, सॉरी यहाँ पे 55 आएगा, x प्लस 55, तो 17 प्लस 55 हमने किया तो 72 ईयर्स उसके फादर की एज आ गई। सो ये हमारे तीनों की एज हमने फाइंड कर लिया, दिस इज आवर आंसर। 12th क्वेश्चन, 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? सो 12th क्वेश्चन में हमें कहा है कि जो रवि है, एक लड़का है, उसकी जो प्रेजेंट एज हमें जो है वो उसको कंसीडर कर लेंगे। वो कह रहा है कि 15 ईयर्स के बाद जो उसकी एज होएगी ना वो किसके इक्वल होएगी, विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज। तो वो उसके इक्वल होएगी कि अगर हम 4x कर दें, मतलब जो उसकी प्रेजेंट एज को 4 टाइम्स कर दें ना, तो वो उसकी इक्वल होएगी। क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगी क्या है कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि की प्रेजेंट एज क्या है x ईयर्स। उन्होंने कहा है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ उसकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 15 कर देते हैं हम, तो इतनी हो जाएगी। अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। सो अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, उन्होंने कहा है कि 15 ईयर्स के बाद जो उसकी एज है रवि की वो 4 टाइम्स हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज के। सो हम इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब उसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी जो हमें उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। सो हमने क्या किया कि 15 यहाँ पे ऐड हो रहा था, दूसरी साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 15 इज इक्वल्स टू 3x, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड आके डिवाइड हो जाएगा x, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 5। सो x की वैल्यू जो है हमारे पास 5 आ गई, मतलब जो प्रेजेंट एज है रवि की, प्रेजेंट एज ऑफ रवि क्या है 5 ईयर्स। सो दिस इज आवर आंसर। Next 13 question. A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you get minus 7 by 12. What is the number? So basically हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमने एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम पहले उसको लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर x। सो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, हमने रैशनल नंबर कौन सा लिया है, उसको x लिया है। व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5 बाई 2, मतलब अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 बाई 2 से, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, एंड एड 2 बाई 3 टू द प्रोडक्ट, और उसकी अगर हम प्रोडक्ट करने के बाद उसमें ऐड करते हैं 2 बाई 3, यू गेट माइनस 7 बाई 12। तो हमारे पास आंसर क्या आता है, माइनस 7 बाई 12। ये बन गई हमारी इक्वेशन। सो हम इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। 5 बाई 2x प्लस 2 बाई 3 इज इक्वल्स टू माइनस 7 बाई 12। यहाँ पे 2 बाई 3 ऐड हो रहा है, दूसरी साइड जाके हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो जाएगी इसकी, माइनस 2 बाई 3। 5 बाई 2x इज इक्वल्स टू, देखो अभी हम इसका एलसीएम लेंगे, 12 और 3 का एलसीएम 12 ही होता है, तो 12 के टेबल पे 1 पे ही जाता है, तो 1 इंटू माइनस 7, माइनस 12 3 के टेबल पे 4 पे जाता है, तो 4 इंटू माइनस 2। सो 5 बाई 2x इज इक्वल्स टू माइनस 7 एंड माइनस 8 अपॉन 12। 5 बाई 2x, देखो ये दोनों माइनस क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 15 बाई
12, तो ये आ गया। अभी ये देखो 5/2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आके 5/2 डिवाइड हो गया। तो हम क्या करेंगे, जब भी डिवाइड का साइन हो, अगर हम उसे मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, इनकी पोजीशन 2/5 बन गया। तो अभी हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 5 1 द 5, 5 3 ज़ा 15, सो ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 द 6, तो यहाँ पे आ गया -1/2। सो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। सो जो हमने जो नंबर फाइंड करना था, द नंबर, वो क्या आ गया, हमने x कंसीडर किया था उसको, तो वो हमारे पास आ गया -1/2। दिस इज आवर आंसर। 14th question. Lakshmi is cashier in a bank. She has currency notes of denomination ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. So Lakshmi cashier है बैंक में, और उसके पास नोट्स हैं, नोट्स के बंडल हैं, 100 रुपीज़ के नोट्स के बंडल हैं, 50 रुपीज़ के और 10 रुपीज़ के। और कौन सी रेशो में है, 2:3:5। जब भी हमें रेशो दी जाए ना, तो हमने उसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, 2x 3x 5x में। रेशो गिवन है तो हमने इसको कंसीडर कर लेना है कि 100 रुपीज़ के नोट्स के बंडल 2x हैं, 50 रुपीज़ के 3x हैं, 10 रुपीज़ के 5x हैं। और उसके पास टोटल हमें अमाउंट दिया हुआ है कि लक्ष्मी के पास टोटल अमाउंट है 4 लाख। तो अभी हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि उसके पास बंडल तो है, लेकिन उस बंडल में उसके पास टोटल नोट्स कितने हैं। ये तीनों रुपीज़ के, 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़ और 10 रुपीज़ के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स, 100 रुपीज़ के नोट्स उसके पास कितने, हमने पहले ही कहा है कि जो हमें रेशो गिवन है उसको x में कन्वर्ट कर लो, तो ये 2x आ गया। 50 रुपीज़ के नोट्स 3x, 10 रुपीज़ के नोट्स 5x। तो उसके पास अभी हमने देखना है कि उसके पास टोटल अमाउंट कितनी है। तो लक्ष्मी हैज़ अमाउंट फ्रॉम 100 रुपीज़ नोट के, उसके पास 100 रुपीज़ के नोट है, हमें पता है कितने हैं 2x। हमने देख लेना है कि उस 100 रुपीज़ के नोट से उसके पास कितनी अमाउंट जनरेट हो रही है। तो ये बन गया 2x इंटू रुपीज़ 100, रुपीज़ 200x, 50 रुपीज़ के नोट से 150x आ गया, 10 रुपीज़ के नोट से रुपीज़ 50x आ गया। तो उसके पास अभी टोटल अमाउंट कितनी आ गई, हमने ये तीनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। हम तीनों को जब ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। टोटल अमाउंट आ गई ₹400x। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो हमने ये टोटल अमाउंट फाइंड कर लिया है। टोटल अमाउंट को हमने जो गिवन अमाउंट थी कि लक्ष्मी के पास 4 लाख जो अमाउंट है, तो हमने ये दोनों को इक्वल कर लिया। 400 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड आके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास 1000 आ गई। ऐसे ही फिर हमने नोट्स, नंबर ऑफ़ नोट्स फाइंड करने थे, तो नंबर ऑफ़ रुपीज़ 100 नोट्स हमने 2x कंसीडर किया था, तो 2 इंटू 1000 2000 नोट्स आ गए। 50 रुपीज़ के नोट्स 3000 आ गए, 10 रुपीज़ के नोट्स 5000 आ गए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है समझने में, कोई भी दिक्कत आई हो, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।